Good evening, everyone. Now, the next topic we have to discuss is petroleum. Last time we have discussed about the coal and about three products of the coal like coal gas, coal tar, and coke. Now, in this lecture, we have to discuss about the petroleum. See, this is the word combine of two different words like petroleum. पेट्रोलियम पेट्रो का मतलब होता है पत्थर रॉक्स और ओलियम का मतलब होता है ऑयल पत्थर को तोड़कर निकाला गया हुआ तेल विच इज़ नोन एज पेट्रोलियम. So you know that petrol is used as a fuel in light automobiles like motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. And these two products, petrol and diesels, are obtained from natural resource called petroleum. तो पेट्रोलियम इज़ नॉट अ सिंगल प्रोडक्ट गाइस. पेट्रोलियम जो होता है उसमें बहुत सारी अलग अलग उसमें से प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिसमें से कुछ जो फेमस हैं जो वेल नोन हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, आसफाल्ट, देन कुछ गैसेस, नेचुरल गैसेस भी मिलते हैं इसमें से. So petroleum was formed from organisms living in the sea. As this organism died, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layers of sand and clay. So basically देखा जाए तो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं या तो जो पेट्रोलियम है वो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में से बना होता है. तो ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इन टू द सी and their dead bodies are settled down at the bottom and covered by the layers of sand, clay and other organisms dead body also. So, and over millions of years absence of air, high temperature and high pressure transformed this dead organism into petroleum and natural gas. तो लाखों करोड़ों सालों में उनके ऊपर जो रिएक्शंस हुए ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ अर्थ and high pressure, they slowly converted into petroleum as well as natural gas. So you can see the figure petroleum and natural gas deposits. You can see here ये आप जो है रिजर्वर रॉक, उसके नीचे ऑयल है, उसके नीचे वाटर भी दिखाई देता है और सबसे ऊपर गैस होते हैं. ठीक है, अब देखो समझो यहाँ पर तो इट शोज़ दैट द डिपोजिट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस and you see that the layers containing petroleum oil and gas is above that of water. मतलब कि पानी जो होता है वो हैवी रहेगा और पानी की कंपेयर में पेट्रोलियम लाइट इन वेट रहता है, इसीलिए ऊपर जो है वो पेट्रोलियम रहेगा और उसके नीचे वाटर. देन व्हाई इज इट सो? बिकॉज gases is lighter than the water, oil and gas, both of them are lighter than the water. The world's first oil well was drilled in the Pennsylvania in USA in the year of 1859, and then after nearly 8 years after, in 1867 the oil was stuck at the Makum in Assam in India, which is the first well of Asia, which was the first oil well of Asia. Then after numbers of like Assam, Gujarat, Mumbai High and the rivers of basins of Godavari and Krishna, इन सभी जगहों पर हमें पेट्रोलियम्स मिला है. अभी जो पेट्रोलियम मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता है, मतलब वो एक ब्लैक थीक विस्कस बैड स्मेली लिक्विड होता है जिसको प्योरीफाई करना पड़ता है, उसमें से अलग अलग सब्सटेंस जो हैं, सब अलग अलग कंपोनेंट्स जो हैं उसको अलग करना पड़ता है. तो पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड, इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑडर. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, lubricating oil, paraffin wax, etc. And the process of separating the various constituents is called fractional distillation. Constituents
और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज़ नोन एज रिफाइनिंग एंड इट इज़ कैरिड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो ये जो प्रोसेस है रिफाइनिंग का उसको कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन process. So various constituents of petroleum and their uses are given in the table below, and before that we have to discuss some information given, like many useful substances are obtained from petroleum and natural gas. These are termed as petrochemicals. तो पेट्रोलियम में से मिलने वाले जो केमिकल्स हैं उसको कहा जाता है पेट्रोकेमिकल्स, एंड दीज आर यूज इन मैन्युफैक्चर of detergents, fibers like polyester, nylon, acrylic, etc. Then polythene and other man-made plastics, इन सब के अंदर ये पेट्रोलियम की प्रोडक्ट का ही यूटिलाइजेशन होता है. सेकंड थिंग, हाइड्रोजन गैस is also obtained from the natural gas. It is used in the production of fertilizers known as urea. And due to its great commercial importance, petroleum is called black gold. उसको काला सोना कहा जाता है क्योंकि उसका कमर्शियल बहुत जगहों पर यूज़ होता है. आप देखें तो आपकी डेली लाइफ के अंदर नंबर्स ऑफ थिंग्स ऐसी होंगी जो पेट्रोलियम की बनी हुई या तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनी हुई होगी. जैसे मैंने कहा कि क्या क्या प्रोडक्ट्स मिलती हैं, तो ये है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स. सबसे पहले निकलता है पेट्रोलियम गैस इन लिक्विड फॉर्म नोन एज LPG, विच इज़ यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज़ में, दोनों में आप उसको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. तो आपके घर पे जो रेड कलर की बॉटल के अंदर जो गैस होता है वो यही होता है, LPG. उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट इज़ नोन एज पेट्रोल. पेट्रोल इज़ यूज्ड फॉर एज अ फ्यूल इन द मोटर्स एंड द एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग, इन सभी जगहों पर ये पेट्रोल यूज़ होता है. देन आफ्टर kerosene, again it is used as a domestic purposes like fuels for stoves, lamps and for jet aircrafts. जेट प्लेन्स जो होते हैं उनके अंदर ये उसका यूटिलाइजेशन होता है कैरोसिन का. देन गाइज डीजल, इट इज़ यूज्ड फॉर द हैवी व्हीकल्स एंड द इलेक्ट्रिक जनरेटर्स ऑल्सो. lubricating oil, it is uses as lubrication. इन जो व्हीकल्स के अंदर जो आप lubricating oil डालते हैं वो सब यही होता है. देन पैराफिन वैक्स विच इज़ यूज फॉर द कैंडल्स, वैसलिन, ऑइंटमेंट, सब के लिए. एंड लास्ट में आता है बिटुमेन. बिटुमेन जो होता है इट इज़ लाइक एसफाल्ट, जो आप उसको डामर जो बोलते हैं वो, विच इज़ रोड सरफेसिंग के लिए, पेंट्स के लिए उसका यूटिलाइजेशन होता है. सो गाइज ये था पेट्रोलियम. और उसके बाद एक टॉपिक देख लेते हैं अपन, नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. नेचुरल गैस को आप इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं यहाँ से वहाँ. एंड इट इज़ स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG जिसको कहते हैं हम, कंप्रेस्ड नेचुरल. LPG मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द पावर जनरेशन. पावर जनरेशन मतलब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन जो होता है उसमें CNG का यूटिलाइजेशन होता है. And it is now being used as a fuel for transport vehicles because it is less polluting and it is a cleaner fuel. क्योंकि इसका कंप्लीट कंबशन होता है, वो किसी भी तरह के स्मोक्स को, धुआं जो उसको हम बोलते हैं वो नहीं निकालता है. अनबर्ड कार्बन पार्टिकल्स भी बहुत कम हो रहते हैं और इसलिए आजकल उसका क्लीनर फ्यूल में यूज़ होता है. मतलब CNG ऑटोज़ हैं, CNG बाइक्स, CNG कार्स हैं, बसेस हैं. तो जिससे क्या होगा कि हमारा जो CNG जो होता है उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है. देन गाइज द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज़ दैट इट कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइड थ्रू द पाइप्स. आप इस गैस को पाइप थ्रू सप्लाई कर सकते हैं बहुत जगहों पर. अब तो गुजरात में भी बहुत सी जगह हैं, जैसे बड़ौदा है, दिल्ली है, दैन द अदर प्लेसेस लाइक गांधीनगर, अहमदाबाद के भी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जहाँ पर ये पाइप थ्रू गैसेस जो है वो घर घर पहुँच चुका है. नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज एज अ स्टार्टिंग मटीरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ नंबर्स ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स.
तो नेचुरल गैस भी जो है वो भी बहुत जगह पर यूज़ होता है। जो केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का प्रोडक्शन होता है इसमें इसका यूटिलाइजेशन होता है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस, मतलब इंडिया में नेचुरल गैस के बहुत बड़े बड़े रिजर्व्स मिले हैं। एंड इट हैज़ बीन फाउंड दैट इन त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कृष्णा गोदावरी डेल्टा में ये नेचुरल गैस के बड़े बड़े या तो ज़्यादा अमाउंट में हमें उसके रिजर्व्स मिले हैं। तो बच्चों ये था नेचुरल गैस।